today we will discuss about RMS exam 2020 जो कि अभी हुआ था 19th of September को, right? Class 6 उसका इंग्लिश का पोर्शन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो है अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जो कि मैंने आपको पहले बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए हमें डायरेक्ट पैसेज पे नहीं जाना होता. हमें क्या करना होता है? पहले वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस. ओके, first of all we need to read the questions. So the very first question is, please read the questions with me so that कि आप मेरे साथ आंसर दे सके. Okay, then let's get started. First question is, dash if they are to develop a strong and healthy body, the word they has been used for. They word किसके लिए यूज हुआ है? गुड लीडर के लिए, यंग बॉय गर्ल के लिए, फाइन सोल्जर्स के लिए एंड द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के लिए. नेक्स्ट इज, what should we do to develop the strong and healthy body? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी डेवलप करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? वी शुड ईट मोर फूड, or we should play games, or we should eat sweets, or we should drink Coca-Cola. Okay, we need to find the correct answer from the passage. So please read with me. According to the Duke of Wellington, where was the Battle of Waterloo won? In the battlefield, or in France, or in playfield of Eton, or in England? नेक्स्ट, प्लीज क्वेश्चन रीड करते टाइम कीप इन माइंड कि आपको हर क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तभी आप आंसर फाइंड कर सकेंगे. व्हाट आर द क्वालिटी नीडेड फॉर अ बैलेंस पर्सनैलिटी एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ? कौन सी बैलेंस पर्सनैलिटी क्वालिटीज की जरूरत होती है फॉर अ गुड पर्सनैलिटी? करेज, मैलीनेस एंड फाइटिंग स्पिरिट एंड फेयर प्ले, या फिर अबव ऑल? या तो इनमें से कोई एक, या फिर ये तीनों. तो फिर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा. देखेंगे कौन सा है. नेक्स्ट इज, सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्च्यू. पैराग्राफ से फाइंड करना है कि वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है. नाउ प्लीज रीड द पैसेज विथ मी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. ओके, एंड अंडरलाइन करते चलेंगे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां जहां हमें लगेगा कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं. देन स्टार्ट रीडिंग विद मी. Sports play an important part. Sports play an important part in the life of every growing boy and girl. Young boys and girls need to play games if they are to develop a strong and healthy body. Besides, the play field provides a person with an opportunity to learn virtue like self-confidence and cooperation, so essential in the building up of balanced personality. The Duke of Wellington is reported to have said that the Battle of Waterloo was won on the field of Eton. What he meant was that the officer who had received their schooling at Eton had learned courage, manliness, and fighting spirit. Okay. और हमें यहाँ पता लगा कि जो ये वाटरलू का जो बैटल था वो कहाँ जीता गया था? Playfield of Eton में. And fair play in their school games. It was this quality that made them such good leaders of men and above all such fine soldiers. So we couldn't underrate the importance of game. Okay, हमने ये पैसेज पढ़ लिया and I hope कि आपको पैसेज समझ भी आ गया होगा. Now let's start answering. Please give me the answer in the chat box. I'm waiting for your answers. Okay, so dash they are to develop a strong and healthy body. The word they has been used for. They word किनके लिए यूज किया गया है बच्चों? Of course not for the leaders. बच्चे don't follow the mark. आपने ये मार्क देखा है, ये नहीं देखना प्लीज, ये किसी स्टूडेंट का लगाया हुआ है. So don't follow. Give your own answer. Like, they is used for young boys and girls. Next, what should we do to develop a strong and healthy body?
स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स या कोका कोला हमारी हेल्दी बॉडी नहीं डेवलप करेगा. ऑफ कोर्स वी शुड प्ले गेम्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, question number 3. According to Duke of Wellington, where was the Battle of Waterloo won? कहाँ हुई थी भाई? जीती कहाँ गई थी वाटरलू की बैटल? Okay, in C, in the playfield of Eton. Very good, बच्चे. What are the qualities needed in the balanced quality personality as mentioned in the paragraph? क्या क्या चीजें जरूरत होती है एक बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए? ऑफ कोर्स करेज, मैनलीनेस एंड फाइटिंग स्पिरिट हमने सेकंड पैसेज में पढ़ा है कि ये सब चीजें चाहिए होती है. तो फिर हमारा ऑप्शन ऑफ कोर्स डी होना चाहिए, अबव ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारी की सारी चाहिए होती है. तो ऑफ कोर्स डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड प्रोसेस्ड इन मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्च्यू. वर्च्यू का क्या मीनिंग होता है बच्चे? ऑफ कोर्स वर्च्यू माने क्वालिटीज. बी इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स चेक द सेकंड क्वेश्चन. हमारे पास सेकंड जो पोर्शन मिला था उसमें है फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. आपको सेंटेंस फॉर्म में कुछ वर्ड्स मिले हैं, ठीक है, उनको अंडरलाइन किया गया है. नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग. प्लीज थोड़ा सा क्विक आंसर करेंगे आप मेरे साथ. राइट, द बिल्डिंग लुक्ड अगली आफ्टर द पेंटिंग. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अगली? ऑफ कोर्स अगली का ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? ऑफ कोर्स डी. अगली माने गंदा, ब्यूटीफुल माने अच्छा. राइट, सुंदर. ओके, द एक्ट्रेस परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट. नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? पेपर वाज टू इजी बच्चे, बहुत इजी पेपर था. ऑफ कोर्स सारी वर्कशीट्स में से पेपर आया है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि करवाए में से नहीं आया, बहुत इजी पेपर आया है. सो ब्रिलियंट का ऑपोजिट सभी को पता है, ऑफ कोर्स इज सी, डल, क्विक. ओके, नेक्स्ट, द बॉस स्पोक टू हिम इन अ कोल्ड मैनर. कोल्ड माने क्या होता है? गुस्से से बात किया, नहीं अच्छे से बात किया. सो उसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट? ऑफ कोर्स वार्म, यानी थोड़ा अच्छे से बात किया. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. as you know that we have 50 questions, right? 50 question 50 marks. सो पेपर इतना इजी था कि अगर आपके 40, ऑफ कोर्स पेपर इजी है तो मेरिट भी जो है, कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा हाई जाएगी. तो आपके 46 to 47 मार्क्स अप्रॉक्स चाहिए आपको, तभी जाके आपकी क्या सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगी. लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट एज सिंपल एज इट यूज्ड टू बी. देन व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सिंपल? इजी का डिफिकल्ट होता है बच्चे. बहुत बच्चे हैं जो डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं, बोलते हैं कि डिफिकल्ट होगा. इजी का डिफिकल्ट होता है, सिंपल का कॉम्प्लेक्स होता है. सी, राइट. इन दैट कंट्री पीपल वियर स्ट्रेंज क्लोथ्स. स्ट्रेंज माने अजीब, तो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल हो गया. राइट, तो ये इसका ऑपोजिट है. ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 11. Now fill the correct preposition. So let's start. Okay, so first क्या है? अंजलि is dash from malaria. अंजलि क्या कर रही है? मलेरिया से सफर कर रही है. So it's suffering from. सफरिंग के साथ क्या रहता है? सफरिंग किसी से किया जाता है तो from. Okay. सोनू has no love dash music. म्यूजिक के लिए प्यार होता है ना? के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चे? for. Sonu has no love for music. Okay. Next, 13. The boy ran dash the dog. Boy dog के पीछे भागा. Of course on at for तो नहीं होगा, पीछे भागना तो after हो गया ना. ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट, the driver jumped dash the car. देखो, जब कुछ सेपरेशन होता है, कार है ये, चलो कार का हम ये छत मान लेते हैं कि किसी से सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चे? ओ डबल एफ ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट. नेट में पकड़ा जाता है ना बर्ड्स को. मे के लिए इन.
करेक्ट, सो इजी। आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी थे। हमारी सारी वर्कशीट से आया, ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो नहीं करवाए से आया, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा है बच्चे, ऑफ कोर्स यहाँ तक क्लियर है सबको? Next is question number 16 बच्चे, which is idiom. Now you have to find the correct meaning of the given idiom. So the first idiom is see eye to eye. See eye to eye का मतलब ये नहीं होता कि किसी को घूरना, of course नहीं, means agree करना किसी के साथ, सहमत होना. Okay, next is get cold feet. Get cold feet means किसी भी एक्शन को करने के लिए अनेबल हो जाना, मीन्स नर्वस हो जाना, घबरा जाना. तो हम अक्सर कहते हैं ना घबराहट में हाथ पैर ठंडे हो जाना, सो वो हो गया गेट कोल्ड फीट, मीन्स ऑप्शन ए, बी नर्वस, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, लॉयंस शेयर. लॉयन शेयर, लॉयन जैसे जितना बड़ा होता है ना, सिमिलरली ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज का सबसे बड़ा पोर्शन. ओके, बड़ा हिस्सा, इसे बोलते हैं लॉयन शेयर. ओके, हार्ट एंड सोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट एंड सोल? अभी तक किसी के चैट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज. हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल माने द होल ऑफ वंस एनर्जी एंड पैशन, किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, पूरा पैशन झोंक देना. हम बोलते हैं ना उसने अपने इस काम में अपना हार्ट एंड सोल पूरा लगा दिया. लाइक पीस ऑफ केक मीन्स टू इजी, द थिंग विच इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी हो, उसके लिए हम बोलते हैं सबकी से पीस ऑफ केक फॉर मी, है ना? समथिंग विच इज वेरी इजी, राइट? नेक्स्ट इज, देखो कितना इजी पेपर है कि हम 50 क्वेश्चन है, आपके पास 50 मिनट नहीं लगेंगे हमें कंप्लीट करने में इसको, राइट? नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये थोड़ा सा पिछले पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट आया है. नॉर्मली हमें क्या आते हैं, जंबल वर्ड आते होते हैं जिनको हमें एक सेंटेंस की फॉर्म में बनाना होता है ना. उन्होंने एक वर्ड को ही हमें जंबल करके दे दिया पूरा, उससे एक पर्टिकुलर वर्ड बनाना है. सो इट वाज टू इजी, बहुत इजी है, इससे तो और भी ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि हमें जो बाकी 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जिनसे वर्ड बनता ही नहीं, चौथी ऑप्शन हमारे पास ऐसी होगी जिससे बन जाएगा वर्ड, तो वो हमारा करेक्ट है. लाइक EDAF, इसको अगर मिक्स करते हैं या अरेंज करते हैं तो डफ बनता है, ऑफ कोर्स. RESOW, तो अगर इसको अरेंज करते हैं तो ये 3 वर्ड में ऐसा कोई भी नहीं बन रहा, तो हमारा वॉर्स बन जाएगा, राइट? SESUMEMU, इसको अगर अरेंज करते हैं ना पर्टिकुलर मैनर, सो इट विल बिकम म्यूजियम, करेक्ट? और TNGIKH, ऑफ कोर्स नाइट. टू इजी. अगर हम ये वर्ड्स देख रहे हैं इनका तो हमें कोई मीनिंग ही नहीं मिलने वाला, राइट? सो बहुत इजी है, इसको तो ढूंढना भी बहुत इजी है. सिमिलरली 25th क्वेश्चन, EGEMRE, तो अगर इसको अरेंज करते हैं इन अ सर्टेन मैनर, सो इट बन जाएगा अमर्ज, राइट? सो ऑप्शन 21 का डी मैच कर लीजिए प्लीज. 21 का डी, 22 का डी, 23 का डी, 24 का ए एंड 25 का ए, राइट? नेक्स्ट इज बच्चे one word substitution. Now you have to find the correct one word substitution of the given sentence. Okay, now the first is an enclosure for keeping birds. Birds को रखने की जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चे? Of course it's option B, ivory. zoo होता है एनिमल को रखने के लिए, एक्वेरियम जहाँ पे फिश रखी जाती है, राइट? नेक्स्ट, a sound that cannot be heard. ऐसी साउंड जो सुनी नहीं जा सके, उसको बोलते हैं इनऑडिबल. कई बच्चों ने आंसर लगाया होगा अनहियर्ड का. अनहियर्ड होता है अनसुना, जो कभी सुना ना हो. जो सुना ना जा सके वो अलग है, जो ना सुना वो तो कभी भी सुना जा सकता है, जो सुना ही नहीं जा सकता उससे उसके लिए बात करनी है, तो वह इनऑडिबल. ओके, नेक्स्ट इज वन हु ईट्स
टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो। ये हमारी वर्कशीट के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे था, है ना। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे वर्कशीट से आए हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जो उससे बाहर आया हो, राइट। सो वन हु ईट्स टू मच इज ग्लूटन, राइट। अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे लगेज के जो प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स वेटिंग रूम नहीं बोलते, वहां पे हम वेट करते हैं। प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेन आती है, इट्स अ क्लॉक रूम, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 30 के लिए मैं कहना चाहूंगी सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए पेटेंट हो चुका है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया था एंड इस बार भी फिर से है। अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज थीस्ट, और जो नहीं बिलीव करता उसे हम क्या कहते हैं? एथिस्ट। सो सिंपल, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कभी पूछते हैं, कभी पूछ लेते हैं पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। तो इस ऑप्शन इज सी, करेक्ट। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश द बुक लॉन्ग अगो। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, कि आपको कुछ अल्टरनेटिव्स मिले हैं, नाउ यू हैव टू फिल द सुटेबल वर्ड। ओके, सुटेबल ऐसे नहीं कि जो अच्छा लग रहा है वो भी फिल कर देंगे, लॉजिक के साथ ऑफ कोर्स ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो फर्स्ट, आई डैश दिस बुक लॉन्ग अगो, सो लॉन्ग अगो, अगो इज यूज्ड फॉर द पास्ट, सिंपल। तो ये तो दो गए। लॉन्ग अगो के साथ हमेशा नॉर्मली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं बच्चे। सो आई रेड द बुक, I read this book long ago, right? Next is 32. Question number one dash gather grapes from Hassel, right? तो one हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैसल से, कर सकना पॉसिबिलिटी है, so ability है पॉसिबिलिटी, तो cannot, one cannot gather grapes from Hassel. Now please ring me, प्रेजेंट में है, प्लीज रिंग मी एज सुन एज ही डैश। एज सुन एज क्या दिखा रहा है बच्चे? कंडीशन, जैसे ही ये हो तब ये करना, तो प्रेजेंट में ही है, तो प्लीज रिंग मी एज सुन एज ही क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव गिवन डैश ईटिंग मीट। गिव अप होता है बेटा छोड़ देना, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। सो आई हैव गिवन अप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ आई हैव डैश फ्रेंड्स, मैनी होता तो मैनी कुड बी द आंसर, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। सो आई हैव नो फ्रेंड, नो ऑप्शन में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सो नो इज द राइट आंसर हियर, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 36 to 40, fill in the blank with suitable conjunction, करेक्ट कंजंक्शन हमने फिल करना है। सो द फर्स्ट इज जॉन इज रीडिंग, जॉन पढ़ रहा है, डैश मैरी इज प्लेइंग। तो यहाँ पे हमें परंतु वाली फीलिंग आ रही है, राइट। जॉन इज रीडिंग बट मैरी इज प्लेइंग, राइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यू विल वेट डैश आई रिटर्न। अब क्या है? एक एक्शन कब तक होगा? जब तक दूसरा हो, तो हम क्या कहेंगे? यू विल वेट टिल आई रिटर्न, राइट। एक एक्शन कब तक चलेगा? जब तक कि दूसरा ना हो। आपको कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे? ओके, नेक्स्ट हमारा है गो एट वंस डैश यू विल बी लेट। क्वेश्चन नंबर 38, गो एट वंस डैश यू विल बी लेट, कि जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे, और go at once or you will be late. Now 2 years have passed dash he left Chennai। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारा एक क्या है? परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में हम सिंस लगाते हैं टाइम के लिए। टू ईयर हैव पास सिंस ही लेफ्ट चेन्नई, पर्टिकुलर टाइम है ना उसका चेन्नई से जाने का, राइट।
So next question is dash is poor, he is honest. तो स्टार्टिंग में तो अगर इसमें ऑप्शन में हमें ऑल्दो होता तो भी चल जाता, यहाँ पे दाउ है तो दाउ, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, राइट, बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी पोर्शन है, मैं कहती हूँ फ्री के मार्क्स है ना तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी मुझे इसका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन में जो दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 41 to 45 तक का। नाउ द फर्स्ट इज दे रीच्ड होम डैश 10, सॉरी डैश नहीं, एट 10। तो एट क्या है बच्चे, वी नो दैट एट इज व्हाट, एट इज प्रीपोजिशन, राइट। ही गोज टू स्कूल डेली, गोज क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही ने एक्शन किया वो क्या हो गया, गोज है, तो एक्शन क्या होता है, वर्ब। नेक्स्ट, मुंबई इज इंडियाज बिगेस्ट सिटी, सिटी इज नाउन एज यू नो दैट, राइट। बिगेस्ट क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सो एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सुपरलेटिव डिग्री है बच्चे ये, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है वी हैड अ नाइस टाइम इन गुलमार्ग, वी क्या है, वी सब्जेक्ट की जगह लगा है तो ये क्या है, प्रोनाउन है बच्चे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ऑफ कोर्स, राइट। नेक्स्ट इज द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, अंडरलाइन किया इन्होंने यमुना, यमुना क्या है, यमुना इज द नेम ऑफ अ रिवर, सो नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नाउ वी हैव synonym, similar word find करना है अपने। so the first word is ancient, question number 46। ancient का क्या मतलब होता है, पुराना, बहुत पुराना, तो न्यू, अगली, ब्यूटीफुल तो ऑफ कोर्स नहीं, वेरी ओल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज टाइनी, मतलब छोटा, सो बिग तो ऑपोजिट हो गया, नियर नजदीक, फार दूर, तो स्मॉल इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, ह्यूज, ह्यूज माने क्या होता है, बड़ा, अगर देखा जाए तो ह्यूज और टाइनी एक दूसरे के एंटोनियम है यहाँ पे, राइट। ह्यूज, ह्यूज का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, क्लीन, साफ, अगली, गंदा, डर्टी, गंदा, तो क्या ये तो सिनोनियम हो गया आपस में, राइट। सो लार्ज इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, वॉर, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, विक्ट्री, ओके, जीत, तो ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट बिगिन, बहुत इजी बच्चे, दिस पेपर वाज टू इजी, इतना इजी कि अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से किया होगा तो फॉर श्योर ये पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना इजी पेपर था। अगर मैं कहूँ इंग्लिश का पोर्शन तो 50 मार्क्स का पेपर है, सो बिलीव मी 50 में से आराम से 46 47 आ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। सो बिगिन का क्या होगा सिनोनियम, अब ये भी बताने की जरूरत है, ऑप्शन सी स्टार्ट, है ना, टू इजी टू नो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे RMS एग्जाम 2020 जो अभी 19 सितंबर को हुआ था। होपफुली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही रहे होंगे, ओके। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।